as I have told, when we perform the recombinant DNA technology, ultimately we need to transfer your gene of interest or a foreign DNA or the DNA that you wanted to be inserted, okay, in a system, living system, that is the host, okay. Host can be of any category, okay. Suitable host in the case like it can be bacteria, it can be the yeast, or the multicellular organism like plant cell or the whole plant, mammalian cell, fish cell lines, okay. So the all type of organisms, they are the groups in which these cells can be served as a host for the vector, okay. So like bacterial, in bacteria, the E. coli, E. coli is actually used as okay, so the E. coli you have, it is a suitable host when we used to when we are propagating our gene of interest through the bacterial plasmid. Okay, so E. coli serve as a very good host. So, but when we are using the E. coli strain, there are several strains of E. coli available in the market that can be used for the recombinant DNA technology. So actually, the strain of the E. coli that we use for the recombinant technology is not of native type. जैसे कि हमने vectors में देखा था कि the bacterial plasmid, like the plasmid vector, that is basically bacterial extra chromosomal DNA. But to be served as a vector, to be served as a carrier for your gene of interest, there is a requirement of certain modifications. Okay, same way, there are some changes done in the E. coli strain that is used for the that that makes the E. coli even more suitable for recombinant DNA technology. There are several strains available. One of the very popular strain in the laboratory, which is used for the cloning of the E. coli, is DH5 alpha. Okay, so DH5 alpha is one of the strain which is very popular in the lab for the cloning. Okay, then yeast cell can also be used as a host for recombinant DNA technology. Means it can be served as a medium where your vector which carries the foreign DNA or which carries your gene of interest can be replicated and propagated. Okay, why the yeast can be used as a host? Because it can be easily grown in the yeast media and its genomics is well known, means its genetic is its genome structure is well known. Then when we talk about the bacterial host, then what happened in the bacteria? Only the bacterial proteins can be expressed. But when we talk about the eukaryotic protein, it doesn't mean eukaryotic protein cannot express in the bacteria, but in this system it may express easily. Okay, and we can easily collect and purify the gene or the protein, which is eukaryotic gene of protein, which is propagated inside the yeast cell. Then even the okay, then the plant, as I have told, the plants cell and animal cell, they have difference in terms of structure, in terms of their physiology, the way they function. So their expression system is also somewhat different. Okay, so if we need the plant protein or the plant product, or okay, then the plant cell or the whole plant could be the better host as compared to the bacteria and yeast. And the very first thing means when we experiment or when we use the plant cell as a host, then there will be no issues of the ethical issues are not as highest as when we talk about the animal cells. Okay, so that is one of the advantage. Then the plant can be easily grown. You can produce the plants with many new properties. Okay, then the mammalian cell, to express the mammalian gene. Okay, this cell can be served as a host, although it is harder to grow, but it has a medical use. It has a medical use means so many diseases which carries human जो disease trials है उनके जो
नॉकआउट्स हैं, नॉकडाउन बनते हैं पर्टिकुलर जीन के लिए, जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं या जो जीनोमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मींस जहाँ पे सर्टेन जो जीन्स का जो अप रेगुलेशन या डाउन रेगुलेशन, उनका कम एक्सप्रेशन या उनका ज्यादा एक्सप्रेशन या उनका म्यूटेशन जो है डिजीज कॉज करता है, वहां पर जो भी स्टडीज होती हैं, चाहे उसको आइडेंटिफिकेशन के लिए, फिर चाहे उसके लिए थेरापेटिक्स डेवलप करने के लिए, मेडिसिन डेवलप करने के लिए, most of this studies were done in the mammalian cell. The mammalian cell lines are also a suitable host. The same way there is a fish cell lines also, जो आपका lower vertebrates, बहुत सारे ऐसे जीन्स हैं जो आप mammalian cells में नहीं कर सकते, या फिशेस के लिए, जैसे फिशेस जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो कुछ उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, उस तरह से जो आपको रिलेटेड स्टडी करनी है, वहां पर जो है आपकी जो फिश सेल लाइंस है दैट कैन बी यूज्ड. So the host can be the variety of cells, but in all these cells which is used as a host cell for recombinant DNA technology needs certain modifications, okay, that can be used, so it becomes more suitable for recovery and collection of the transgene or the protein which is coded by that particular transgene. So this is about the host. Now we will discuss about what are the process involved in recombinant DNA technology. So before this, we have discussed what are the tools which is important in the recombinant DNA technology, that are restriction enzyme, DNA ligases, vectors, and host cell. Now, what are the steps involved? So it basically involves 5 steps, okay, in which we can perform the recombinant DNA technology process, or where we can develop, or we can propagate, or we can isolate and purify the transgene. Okay, so the very first step will be the isolation of DNA, then followed by the cutting of DNA at specific location, then amplification of particular cut fragment or our gene of interest, then inserting that gene of interest into the vector, then its transformation into the host, and after transforming it into the host, then obtaining that foreign gene or the gene of interest as whole, or the gene product. Okay, so we will see this one by one. So the very first is the isolation of DNA. Okay, as we know, here just we talk either the prokaryotic cell or the eukaryotic cell. The DNA, there is a DNA is present inside the cell. When we talk about the prokaryotic cell, it is naked inside the cytoplasm. When we talk about the eukaryotic cell, it is enclosed in a closer compartment which is known as a nucleus. Okay, so when we talk about the DNA isolation, the very first thing that we need to do is to lyse the cell. Means a DNA is enclosed inside the cell, so we need to break the cell membrane. Okay, so the very first process in the DNA isolation is the cell lysis. In the cell lysis, what we used to do, we simply used to break the cell membrane. When it is prokaryote, we used to break the cell membrane only, but when it is a eukaryote, we need to break the cell membrane, means as well as the nuclear membrane. Okay, so breaking the for cell lysis, what we used to do, we used to do different type of detergent. This detergent like SDS, sodium dodecyl sulfate, this is one of the detergent that we use to break down the cell membrane. How it works, it actually broken down the lipids. Lipids are the major constituent of the cell membrane. Okay, so the cell membranes होती है, that the major component of the cell membrane is phospholipids. Okay, and some other lipids are also present in the membrane. So this detergent, they used to disintegrate this lipid molecule. So this resulted into the broken down of the cell membrane or the cell lysis. Then the second step we need, because we are isolating the DNA, another requirement is the removal of the protein from the solution. So what we use, or from the cell. So what we used to do, we actually treat our sample, okay, the tissue sample, with an enzyme which is known as proteinase. Proteinase K is an enzyme that degrades the protein. It acts on the peptide bonds, okay, and then it degrades the protein. So what happened when you perform the cell lysis? You would basically disintegrate the cell membrane using the detergent which acts on the lipids. Then we use proteinase K, which degrade the protein. So
So cell is basically made up of three major components. Lipids है आपके, proteins and four, sorry, lipids, protein, carbohydrates and nucleic acid. Now your nucleic acid in the solution, आपने उसमें जो proteins है उनको भी degrade कर दिया, cell membranes को break कर दिया. Now the DNA is free in the solution. So after that we used to precipitate the DNA. So for DNA precipitation, what we used to do, there is some organic solutions like ethanol. The 90% ethanol is used to precipitate the DNA, and that precipitated DNA can be used for downstream application. So when you hopefully we will be back in our college in the month of July. So in the practical lab, we will isolate the DNA from the fish tissue sample. Okay, then now you got the DNA. Okay, now from that DNA you need your, but suppose when you are isolating the DNA, you are isolating the DNA from the whole cell or the whole tissue. So what you are getting the entire genome. Okay, pura, you are getting the genomic DNA in this tube. Okay, so now you are not going to transfer the entire genomic DNA of the individual one or the animal one into the animal two. It's not going to be happen. You are just going, your target is to transfer a particular fragment, a particular gene which have the desirable function. Okay, suppose you want a fish, a recombinant fish that have a resistance to the bacterial sepsis. So what you need a gene that provide the tolerance or resistance to the bacterial disease. Okay. So what you actually want only that particular gene to be transferred. Okay. So when you are performing the recombinant DNA technology, you're not going to transfer the entire genomic DNA into the animal, okay, or another organism. So what you need a particular fragment. So for getting that particular fragment from the whole DNA, what you need to do, you need to cut it that DNA. So these restriction enzyme, they are basically the biological scissor. Biological scissor means they are the restriction endonucleases. They cut the DNA at specific size. At specific site means these enzymes recognize some particular DNA, conserved DNA sequences. When those sequences is present on DNA, then only they will cleave the phosphodiester bond between two adjacent nucleotide. Here, this is the restriction site for enzyme EcoR1, that is GAATTC. So what happened? There is a breakage. The point of cleavage by the EcoR1 is between the G and A of the 5' 3' strand, and here between the G and A. So what happened? This is the point of cleavage. So when this sequence is present, it will cut your DNA at specific site. Okay, so the restriction enzymes, they are the biological scissor. They use to cut our gene of interest. Okay. Then another thing is what? Now the amplification of your gene of interest. Suppose you have isolated the genome. Okay, you after isolating the genome, suppose you have working with 100,000 number of cells. So what you will get? You will get the genomic DNA of 100 cells. So what you have? Suppose if your gene is a single copy gene, उसके genome में एक single copy है. Okay, and you get only 100 copies. So 100 copies of gene के साथ आप काम नहीं कर सकते. You need thousands of millions of copies. So that जब आपके पास इतनी सारी कॉपी मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आप उसको इजिली हैंडल कर सकते हैं एंड देन यू कैन ट्रांसफर इट. तो ये जो एम्प्लीफिकेशन होता है, हाउ इट अकर्स, to amplify our gene of interest, what we used to do, we used to perform the polymerase chain reaction. Now see how this polymerase chain reaction actually works.
see, this is your DNA. Suppose this is your gene of interest. ये आपका एक particular gene of interest है. Now you want a multiple copy. ये आपका double standard. स्लाइड नहीं दिख रहा मैम. हाँ, स्लाइड नहीं दिख रहा. स्क्रीन नहीं दिख रही है. अच्छा एक सेकेंड, ये व्हाइट स्क्रीन नहीं दिख रही है आपको? व्हाइट दिख व्हाइट स्क्रीन पे कुछ टेक्स्ट नहीं दिख रहा? ब्लैंक है. पूरा ब्लैंक नहीं दिख रहा. कोई एनोटेशन नहीं दिख रहा है स्क्रीन पर? नो नो मैम. अच्छा मैं फिर से करती हूँ. नो मैम. ओके, नाउ यस यस मैम. okay, so this is your double stranded DNA. okay, this is your gene of interest. ये आपको मल्टीप्लाई करना है, इसकी आपको मल्टीपल कॉपीज चाहिए. तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली 3 स्टेप होते हैं. 1 2 3. एक होता है आपका डीनेचुरेशन, फिर दूसरा होता है प्राइमर एनीलिंग, फिर तीसरा होता है प्राइमर एक्सटेंशन, ठीक है. ये आपके 3 स्टेप्स जो है ये होते हैं आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में. अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक आपका ये जो है ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, डबल स्टैंडर्ड है, ठीक है. सो जो पहला स्टेप होगा पीसीआर में वो होगा आपका डीनेचुरेशन. क्या होगा? डीनेचुरेशन. तो डीनेचुरेशन में क्या होगा? डीनेचुरेशन में आप डीएनए को, जो आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए, उसको हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज करेंगे आप 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड. तो जब आप 94 टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको एक्सपोज करेंगे तो इसके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ब्रेक हो जाएगी. अब क्या होगा? यू विल गेट सिंगल स्ट्रैंड. एक आपका 5 प्राइम 3 प्राइम स्ट्रैंड मिल गया, एक आपको 3 प्राइम 5 प्राइम स्ट्रैंड मिल गया. अब जो आपका सेकंड स्टेप है पीसीआर में वो है प्राइमर एनीलिंग. अभी आपने क्या किया? आपको इस पे जो है आके प्राइमर जो है वो बाइंड करेगा. ठीक है, ये प्राइमर क्या है? इस एंड के लिए स्पेसिफिक है. ये हो गया आपका सेकंड स्टेप, प्राइमर एनीलिंग. प्राइमर यहाँ पर आकर के एनील किया, तो एनीलिंग के टाइम में ये टेम्परेचर लोअर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर 96 डिग्री रहेगा तो जो दूसरा प्राइमर आ रहा है वो छोटा सा फ्रेगमेंट प्राइमर सीक्वेंस है वो इस एंड पर आकर के आपका हाइड्रोजन पेयरिंग नहीं कर पाएगा. जब ये हाइड्रोजन पेयरिंग नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर जो आपका डीएनए पॉलीमरेज है वो इस रिएक्शन को आगे नहीं बढ़ा पाएगा. तो जो प्राइमर एनीलिंग होती है वो जो होती है वो आपकी लोअर टेम्परेचर पे होती है, समवेयर 72 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है, यहाँ पर आपका स्पेसिफिक प्राइमर जो है वो बाइंड हो गया. अब आपका थर्ड स्टेप क्या आता है? अब आपका थर्ड स्टेप आता है प्राइमर एक्सटेंशन. प्राइमर एक्सटेंशन का क्या मतलब है कि अब ये प्राइमर जो है यहाँ पर आगे आगे नए न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता जाएगा. ओके, सो इसके लिए टेम्परेचर को और भी नीचे जाना पड़ता है. सो वो अलग अलग प्राइमर के लिए प्राइमर एक्सटेंशन का टेम्परेचर अलग अलग होता है. तो वैरी करता है स्पीसीज टू स्पीसीज. इट रेंजेस फ्रॉम 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड. सपोज अगर आपका पर्टिकुलर प्राइमर के लिए ये टेम्परेचर जो है आपका, सॉरी, अब आपको क्या हुआ कि ये आपका 2 स्ट्रैंड हुए, ये आपका इधर एक प्राइमर बाइंड किया, इधर एक प्राइमर बाइंड किया. ओके, अब आपका जब प्राइमर एक्सटेंशन होना है तो आपका जो पॉलीमरेज होगा, और पीसीआर में आपका जो पॉलीमरेज यूज होता है वो टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है. टैग डीएनए पॉलीमरेज क्यों यूज होता है? क्योंकि हम बहुत जो रिएक्शन
ट्यूब है उसको बहुत हाई टेम्परेचर तक लेके जाते हैं, अप टू 96 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर नॉर्मल टैग पॉलीमरेज जो होगा वो डिग्रेड हो जाएगा। ये जो टैग पॉलीमरेज होता है ये आपका एक यूकैरियोट से आइसोलेट है, दैट इज थर्मस एक्वाटिकस। सो थर्मस एक्वाटिकस जो क्या होता है, एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बहुत बॉइलिंग वाटर पे 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी सर्वाइव करता है। तो उसका आइसोलेटेड पॉलीमरेज है, ये पॉलीमरेज हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हायर टेम्परेचर पर भी क्या कहते हैं, डिग्रेड नहीं होता है, एक्टिव रहता है एंजाइम। सो अब ये एंजाइम जो है प्राइमर एक्सटेंशन के टाइम पर ये ऐसे करके आपका एक एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाएगा। सो व्हाट, आपने कहां से स्टार्ट किया था, आपने दो स्टैंड से स्टार्ट किया था, ठीक है। दो स्टैंड से आपको अब कितने स्टैंड मिल गए हैं, 4 स्टैंड मिले। अब अगर आप इसी साइकिल को रिपीट कर दें तो अब आपको यहाँ पर कितने मिल जाएंगे, देख रहे हैं आप, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। यू स्टार्टेड विद द दो स्टैंड थे, अभी आपको 8 मिल गए। अब इसी साइकिल को आप denaturation followed by the primer annealing, then primer extension, फिर से आप उसको फिर से denaturation, primer annealing, primer extension करते जाते हैं। अगर आप तो देखिए आपको यहाँ फिर से और बैंड्स मिलते जा रहे हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे बैंड्स मिलते जा रहे हैं। तो दिस इज बेसिकली पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दो स्टैंड से आपको 4 मिले, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, आफ्टर 30-35 साइकिल्स आपको बहुत ज्यादा जो आपका जो पर्टिकुलर डीएनए फ्रेगमेंट है वो आपको बहुत ज्यादा नंबर्स में मिल जाएंगे। सो जब आपको आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है बहुत ज्यादा नंबर में मिल जाएगा, क्या होगा कि अब आप उसको हैंडल कर सकते हैं। ओके, अब आप उसको आपके पास ज्यादा अमाउंट में है, आप उसको यूज कर सकते हैं फर्दर स्टडीज के लिए। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपका डीएनए है, डीनेचुरेशन हुआ, 2 में बचा, प्राइमर एनीलिंग हुई, फिर प्राइमर एक्सटेंशन हुआ, फिर 2 फ्रेगमेंट से 4 बने, फिर 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके यू विल गेट द multiple copies. Okay, that this is what polymerase chain reaction. To amplify your gene of interest, you need to perform the PCR amplification. Okay. 500. What is for Now the next one is the insertion of that DNA of interest into the host or vector. So if you want to transform that particular gene of interest, you need a carrier. And that carrier is, yes. मैम बिना रिकॉम्बिनेंट डीएनए फॉर्म किए ही इंसर्ट कर देंगे क्या? अभी तो बना, मतलब जैसे एम्प्लीफिकेशन बाद तो फॉर्मेशन होगा ना। हाँ तो वही तो करने जा रहे हैं, देखिए ना इस स्लाइड पे देखिए। ओके, तो आपके पास एम्प्लीफाइड डीएनए आ गया, आपके पास मल्टीपल कॉपीज आ गई आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की। अब आपको उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए आप कैसे, डायरेक्ट उसको इंजेक्ट करेंगे नहीं, सो यू नीड अ सुटेबल वे। अगर आप डायरेक्ट उसको इंजेक्ट भी कर दें, सपोज देयर इज सम मशीन्स लाइक माइक्रो इलेक्ट्रोपोरेटर्स है, आप जो है इलेक्ट्रिक करंट देके सेल की वॉल मेम्ब्रेन पे होल्स क्रिएट कर सकते हैं और वहां से डायरेक्ट डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इंसर्ट भी कर दें तो आपका पर्पस है कि वो होस्ट सेल में जाके मल्टीप्लाई हो, ठीक है, ताकि अगर एक सेल में एक कॉपी गई तो उसकी 1000 रेप्लिकेशन हो, तो उसकी और कॉपी बने। या अगर आपका इंटरेस्ट है कि प्रोटीन आना चाहिए, तो वो जब वहां जा करके इंटीग्रेट होगा, फिर उसके बाद ट्रांसक्राइब होगा, ट्रांसलेट होगा, तभी तो आपको आपकी डिजायर्ड प्रोटीन मिलेगी। जब आपको अपना डीएनए ऑफ इंसर्ट जो है या जीन ऑफ जो इंसर्ट है, सॉरी जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपको होस्ट सेल में डालना है, तो होस्ट सेल में कैसे जाएगा, दैट विल गो थ्रू द वेक्टर। तो वेक्टर आपका जो आपका इंसर्ट का साइज है, ठीक है, जिस सिस्टम से उस हिसाब से आप अपना वेक्टर चूज करेंगे, प्लाज्मिक वेक्टर होगा या आपका फेज वेक्टर होगा, कॉस्मेट होगा कि फेजमेट होगा कि बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम होगा। ये सारी चीजें इस बात पर डिपेंड करेंगी कि आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कितना बड़ा है और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
ठीक है, आप क्या कहते हैं एक्सप्रेशन वेक्टर यूज करेंगे या क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। अगर आपको जीन की नंबर ऑफ कॉपी ज्यादा चाहिए आप क्लोनिंग वेक्टर यूज करेंगे। अगर आपको बहुत ज्यादा मतलब प्रोटीन चाहिए देन यू विल यूज द एक्सप्रेशन वेक्टर। सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जो है वेक्टर के अंदर इंसर्ट करेंगे, जो कि जब हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा था देन वी हैव स्टडीड हाउ आवर जीन ऑफ इंटरेस्ट गेट ज्वाइन, मतलब वो वेक्टर के साथ ज्वाइन करता है। अब जो हमारा वेक्टर है, जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर जाता है, नाउ दैट वेक्टर्स बिकम रिकॉम्बिनेंट वेक्टर। जैसे हेयर यू कैन सी दैट ये आपका प्लाज्मिड है और ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट जब आपके प्लाज्मिड में आपने इंसर्ट किया बाय यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, what you will get, now you are getting a recombinant DNA। ये वेक्टर जो है, अब ये वेक्टर रिकॉम्बिनेंट है। अब इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को यू विल इंसर्ट इनसाइड द सुटेबल होस्ट। यहाँ पर आपने उसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म किया। आपका ट्रांसफॉर्मेशन का मेथड इलेक्ट्रो ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, या जैसे कि हम फेज वायरसेस में जो फेज वेक्टर्स लेते हैं उसमें क्या करते हैं, हम हेल्पर जो आपका वायरस होता है उसके थ्रू इन्फेक्शन करते हैं, इन्फेक्शन के थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, ट्रांसडक्शन कर सकते हैं। कोई भी मेथड यूज करके हमने इस रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी कर रहा है उसको इनसाइड द बैक्टीरिया ट्रांसफॉर्म कर दिया। अब उसके बाद हम उसको कल्चर करेंगे, कल्चर मीडियम में, बैक्टीरियल कल्चर में। नाउ यू विल गेट द मल्टीपल कॉपी ऑफ योर जीन ऑफ इंटरेस्ट इनसाइड द होस्ट, और वहां से देन यू कैन हार्वेस्ट इट। ओके, ये हो गया आपका इंसर्शन इनटू द इंसर्शन ऑफ recombinant vector inside the suitable host. Now it is clear? Afsar? Yes, ma'am. Okay, okay. So now अब क्या करना है, आपने डाल दिया, आपने रिकॉम्बिनेंट वेक्टर करके आपने डाला, आपको मल्टीपल कॉपीज मिल गई। अब आपका जो लास्ट जो ऑब्जेक्टिव हो सकता है, ऑब्टेन द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। या तो आपको जीन प्रोडक्ट चाहिए या उस जीन की मल्टीपल कॉपीज चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जब आप होस्ट के अंदर इंसर्ट करते हैं तो होता क्या है, जो आपका फॉरेन डीएनए है या जो आपका जो इंसर्ट है, जो डीएनए इंसर्ट है या जो आपका डिजायर्ड फ्रेगमेंट है, इट गेट मल्टीप्लाइड। ओके, तो बेसिकली मोस्ट, हमेशा नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द केस आपको क्यों चाहिए होता है वो जीन, या आप क्यों उसको क्या कहते हैं, आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के उसको क्यों ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसका अल्टीमेट डिजायर्ड प्रोटीन चाहिए, उसका जो है जो लास्ट प्रोडक्ट आ रहा है वो चाहिए, क्योंकि दैट इज डिजायरेबल और दैट एक्चुअली कोड्स फॉर द डिजायरेबल फंक्शन। ठीक है, तो होता क्या है कि फिर क्या होता है कि जब आप रिकॉम्बिनेंट वेक्टर को होस्ट के अंदर डालते हैं और जब उसका एक्सप्रेशन होता है वो प्रोटीन आती है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। बेसिकली फिर वहां पर जो आपको एनिमल मिला वो भी आपका रिकॉम्बिनेंट एनिमल है। ये जैसे जो ट्रांसजेनिक हम एनिमल बोलते हैं ना, ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक जैसे आपकी फिशेज हैं, या ट्रांसजेनिक आपका फ्रूट्स हैं, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं। तो बेसिकली होता क्या है, उसमें हम दूसरे सोर्स से एक डीएनए डाल देते हैं, वो डीएनए उसके अंदर जाता है, मल्टीप्लाई करता है, एक्सप्रेस होता है और डिजायरेबल प्रोटीन, जैसे कि एक्वा साल्मन इज वन ऑफ द ट्रांसजेनिक फिश स्पीसीज है जिसको कि एफडीए ने ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूव भी कर दिया है बहुत सालों के मतलब ट्रायल्स, और उसके बाद वो जो है अभी ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अप्रूव हो गए। तो एक्वा साल्मन जैसे क्या है, बेसिकली उसमें दो अलग अलग अटलांटिक साल्मन में जो है चिनूक साल्मन और ओशियन पाउट का जो जीन है उसको उसमें डाला है टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट है, कम टाइम में ज्यादा बड़ी मछली प्रोड्यूस करने के लिए। सो दैट इज अ ट्रांसजेनिक फिश है। जैसे बहुत सारी स्पीसीज होते हैं, जैसे टोमेटो की आपको याद होगा, जैसे आप देसी टमाटर खाते हैं या जो आजकल मार्केट में मिल रहे हैं, टोमेटो की जो सेल्फ लाइफ है वो बहुत बढ़ गई। पहले जो देसी या जो हाइब्रिड या जो हाइब्रिड नहीं थे, देसी वैरायटीज थी, ठीक है, या फिर जो ट्रांसजेनिक नहीं थे, उनकी शेल्फ लाइफ कम थी, पेड़ से तोड़ने के बाद 3 से 4 दिन 5 दिन में सड़ने लगते थे। अभी इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई है, कैसे बढ़ाई है, उन्होंने क्या किया है, उनके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस किए हैं कि जो जीन क्विक राइपनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल था उसका एक्सप्रेशन स्टॉप कर दिया। उसके लिए भी उन्होंने क्या किया है, कुछ रिकॉम्बिनेंट जो जीन्स है या प्रोटीन्स है उसको उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया है। तो ये तो बेसिकली एंड में आप चाहते क्या है
कि आपको आपका जो डिजायरेबल प्रोटीन है वो आपके ट्रांसजेनिक एनिमल में एक्सप्रेस हो। तो ये आपका जो है लास्ट स्टेप होता है वेयर यू कैन, आप कुछ केसेस में क्या होता है जैसे कि आपको वैक्सीन का प्रोडक्शन करना होता है या आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का प्रोडक्शन करना होता है, तो बेसिकली क्या है कोई पर्टिकुलर प्रोटीन या ऐसे एंजाइम है, मैं कह रही हूँ हमारे जैसे आप आएंगे हमारे लैब है, आप लैब में काम करेंगे, आपको मैं कहूंगी यू जस्ट नीड टू आइसोलेट द डीएनए, तो डीएनए आइसोलेशन करने के लिए आपको चाहिए प्रोटीनेस के, प्रोटीनेस की चाहिए बल्क में। तो क्या होता है बेसिकली इस प्रोटीनेस के का जो जीन होता है उसको बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया और फिर उसको कल्चर कर दिया, मल्टीपल कॉपीज आई, वहां से प्रोटीन ज्यादा मात्रा में आपने आइसोलेट कर लिया एंड देन यू हैव यूज्ड फॉर द लेबोरेटरी। तो या फिर आपका डायग्नोस्टिक में चाहिए, जैसे आप एंटीबॉडीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन है वेयर एंड में जो है आपको डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है आप अपने ट्रांसजेनिक एनिमल से, वो आपका बैक्टीरिया है या कोई दूसरे सिस्टम है, वहां से आप आइसोलेट कर सकते हैं। ओके, these are the 5 steps which involve in recombinant DNA technology. The application of recombinant DNA technology or the biotechnology we have discussed in the very first class here. Okay,